This movie is encoded by Dr. Star. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. While you're still in the pink, the years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Hey! Honey, at that beautiful funeral, I've never seen so many flowers. Yeah, he was a nice man, too, but never had any fun. Didn't have time. Just worked and made money. He didn't even have time to enjoy himself. Poor man. You're gonna take that 2-week trip, no matter come what may. But every year you put it off. You just can't get away. Next year, for sure, you'll hit the road. You'll really get around. But how far can you travel when you're 6 feet underground? Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself. While you're still in the pink, the years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. How fucking excited are you right fucking now? Whoa, Karen. I am like physically fucking shaking. I'm so fucking excited. Hey. Like wetter than that time I dragged you guys to see Magic Mike in the IMAX. Karen, you're on speakerphone with the boys. Whoops, your fault. Hi, boys. Don't be a potty mouth like your Auntie Kay, okay? So, haven't figured out this fiasco yet? Nope. Closing a huge deal today. Only been home to shower and sleep all week. Good, because Doug bought a case of Red Fire. Isn't that the stuff that makes you poop red? Fortunately, I only go once every other week. Like on purpose? No, not on purpose. Midlife hormones are a real drag on digestion. Like, you know those concretes from Dairy Queen? Where you turn them upside down and nothing comes out? It's like one of those. Oh. So, how are you going to get Pam in that dress? No clue. Any suggestions? Well, any bad decision I ever made in my life involved vodka, so I would start there. Oh, and Mike, do not forget to go to the bakery and pick up that cake. Don't forget the cake. Don't forget the cake. Don't forget the cake. Don't forget the cake. Hey, your kids are screaming in there. Settle down. There's no dogs in there. Have a lollipop. We have been working on this deal. काम कर रहे हैं. ये कॉल पूरे 3.5 घंटा चला शनिवार को. अब इसे पूरा कर लेते हैं. तो तुम क्या कहती हो लैरी? $1,600 पर ये डील साइन कर लेते हैं. मेरे पास एक बेहतर आइडिया है रिचर्ड. तुम उस साइट पर जाओ अपना अरमानी सूट पहनकर और जाकर कीचड़ में कूद जाओ, क्योंकि तुम लोगों के साथ यही कर रहे हो. भाड़ में जाओ लैरी. तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है. हद है. दोस्तों, एक मिनट थोड़ा शांत हो जाओ, फिर हम बात करते हैं. हाँ, हम तब बात करेंगे जब तुम कोई बेहतर डील लेकर आओगे रिचर्ड. अच्छा ठीक है. पैम, क्या तुम इससे सहमत हो? हाँ बिल्कुल ठीक है. बाद में बात करते हैं. तो क्या कर रही है मेरी प्यारी गुड़िया? मुझे माफ करना, लेकिन शायद मैं आज नहीं आ पाऊंगी गेम देखने. नहीं, कोई बात नहीं. ये एक टी बॉल गेम है. बच्चों को नहीं पता था कि तुम आने वाली हो. बच्चे कहाँ हैं? मेरी बात कराओ. हाँ, एक मिनट. मेरा बेटा कैसा है? पापा ने हमें कार में छोड़ दिया था. तुम बहुत फनी हो. चलो अब चलकर मैदान तक जाओ. ये तुम्हारा दूसरा बेटा. हाय. क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हो? मैं सबसे बुरी माँ हूँ, मुझसे बात तक नहीं करता. देखा, अपनी शादी के दिन भी आईपैड के साथ डांस करेगा. अरे नहीं, अभी तो बस ये ऐसा ही है. एक बार तुम्हारी डील हो जाए, फिर मैं वापस एक बार बच्चों को तुम्हारे करीब ले आऊंगा. ओह थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो. I'm stepping out.
लगभग हो गया। तुम में से कोई सिगरेट पीता है? अच्छा, मैं बस कंपनी को एक ईमेल भेज रहा हूं, देखते हैं कि कुछ खर्चा कम हो सकता है कि नहीं। बकवास। सब ठीक है? ठीक है, शुरू करते हैं 25 और उसे जरा जोर से मारो चैंप। यस, भागो भागो। 2 रन लो, 2 रन। तीसरे के लिए आओ, तीसरे के लिए जल्दी आ जाओ। तुम पहुंच गए। बढ़िया। ठीक है, तो तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। मैं बस इसकी चोट को देख रहा हूँ कौसिलो, ये अब ठीक है। ये अच्छी लग रही है ना? चलो अब आ जाओ, बैठो। मैंने बहुत अच्छा खेला। तुमने सच में बहुत अच्छा खेला। ये ला। बहुत बढ़िया, जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि बस खेलता रहे। हे भगवान, ये बबल गम कैसे इसके कान में जाकर अटक गया। ओ, ये देखो। मैं तुम्हारे डैड को रोज यहाँ खेलते हुए देखता था। शायद उनके सारे गेम्स देखे हैं मैंने, इसके भर्ती होने तक। भर्ती मतलब? ये अच्छा सवाल किया तुमने बेटा। चले, काफी अच्छा गेम था आज का, लेकिन मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। तो क्या तुमने सुना कोच मिलर रिटायर हो रहे हैं? नहीं सुना मैंने। हैं? वो नया कोच ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। ये टी बॉल से बड़ी छलांग होगी। ए लीवाई, मैंने सुना आज कोच के लिए बात करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम ये कर लोगे, हिम्मत रखना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डैड को हाय बोलना मेरा। जरूर। और कोच को कॉल कर देना। हाँ। बच्चों आंखें बंद कर लो, पापा कुछ नहीं कर रहे, आंखें बंद करो। पापा किसी को मैसेज नहीं कर रहे। Hey, happy birthday. अच्छा, किसी को इस जगह की रखवाली के लिए बुलाया है? चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सुंदर लाइट। वाओ, थैंक यू सो मच। वाओ, अच्छा है? हाँ ठीक है, तो डील हो गई? नहीं। पर तुमने तो कहा था कि महीने की पहली तारीख को डील हो जाएगी। आज पहली ही तारीख है। हाँ, प्लान तो यही था, जब तक कि 2 बहुत बड़े घमंडी करोड़पतियों ने इस 46 मिलियन डील पर रोक लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सर्वे में 2 पेड़ कम थे, और वो भी एक गलती से। एंजॉय करो। थैंक यू। बच्चे कैसे हैं? तुमने आखिरी बार उन्हें देखा, उसके बाद एक ने शेविंग शुरू कर दी और छोटा मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया। वो ठीक है, मैंने उन्हें पढ़ाया, नहलाया, खिलाया। हे, बेबी सिटर जल्दी आ गई थी और उसने कहा कि हम लोग देर तक रुक सकते हैं बाहर। हाँ, काश। इस डील ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मेरे 1 साल के बोनस से हम लॉ स्कूल की फीस थोड़ी तो भर देंगे और बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा बचा लेंगे। लेकिन दोनों की उम्र मिलाकर बस 8 साल ही है। हमें उनके पैदा होते ही शुरू कर देना चाहिए था। देखो पैम, तुम क्या करती हो ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन ये समझता हूँ कि क्यों करती हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पर भरोसा है मुझे, और मैं। जवाब देना जरूरी है क्या?
सॉरी, पर मुझे असल जिंदगी में बड़े लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता है। फिर भी हम यहाँ हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। सुनो, मैं सोच रही थी कि जब ये डील हो जाएगी, जो कि जल्द हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों बच्चों के बिना कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। सिर्फ कुछ दिन के लिए बर्बन ट्रेल पर। ये तो अच्छा है। काफी बिजी हो ना? वो लोग तुम्हें बर्थडे विश करना चाहते हैं। ओह हाँ, अच्छा। हाँ। ये एक काम है। ओके, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर कर दो और मैं मेकअप फिक्स करके आती हूँ। ठीक है, क्या खाना चाहोगी? ओह गॉड, अब मैं एक और फैसला नहीं कर सकती आज। ना चिकन, ना बीफ, ना ही स्टार्ची और ना ही डेयरी प्रोडक्ट, कुछ सब्जियां जो कि हम जानते हैं, सॉस के साथ। अच्छा, मतलब बस हवा होनी चाहिए। तुम सही समझे। समझ गया। कहाँ हो तुम? हम ऑर्डर करेंगे जब वो वापस आएगी। थैंक यू। खाने के बारे में सोचना भी मत। मेरा दोस्त टैको हम तीनों के लिए खाना बना रहा है। कैरन, अभी तक डील क्लोज नहीं हुई है। उसने मुझसे वादा किया था कि आज हो जाएगी, पर नहीं हुई। उसे पूरी रात काम करना पड़ता है, समझी? ओह नहीं दोस्त, ये पार्टी तो हो के रहेगी। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ड्रेस पहनकर आ जाना है, समझे? लेकिन ये मैं करूँगा कैसे? मुझे नहीं पता माइक, तुम्हारा जो मन करे वो करो, पर यहाँ आओ। रिचर्ड, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? हाँ, मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ था। अभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने बर्थडे की बधाई नहीं दी तुम्हें। थैंक यू। छोड़ो, इसीलिए तुम मेरे पास हो। वैसे अगर तुम विक्रेता का स्टॉक्स खरीद लेती हो तो। रुको, सैटरडे को पेपर पढ़ोगे? तुम चाहते हो कि मैं 115 पन्ने फिर से लिखूं ताकि तुम पता लगा सको कि कितने खाते में है? तो क्या ये गलत है? हाँ, ये बहुत गलत है। अच्छा देखो, मैं अब खाने जा रही हूँ, मैं 1 घंटे में कॉल करती हूँ, ठीक है? मुझे ये चाहिए, पर ठीक है, हमें मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, क्या हम रुको? ओह, थैंक्स। तुम ये खोलना चाहती हो? मुझे तोहफा डिजर्ट के साथ खोलना है, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं, पर थोड़ा एतराज है मुझे। पर मुझे भूख लगी है। प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। क्या ये मेरा प्रॉम ड्रेस है? नहीं, ये तो बस होम कमिंग ड्रेस है। मुझे समझ नहीं आया। दरअसल ये तुम्हारी माँ ने भेजा है प्रॉम ड्रेस, क्योंकि तुम्हारे घर की छत चू रही है और फफूंदी लग गई है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे ये ड्रेस मेरे घर पे जाने के लिए क्यों दे रहे हो? तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने फिटिंग करवा दी है। ओह, अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया कि ये जरूरी था। वैसे क्यों जरूरी था फिटिंग करवाना? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि घर में आते वक्त तुम इतनी सुंदर लगो जैसा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, प्यार करने के लिए। ओह ओके, ठीक है। मैं समझ गई थी तुम्हारी तंगी चल रही है। नहीं, मैं इसे तंगी नहीं कहूंगा। अब छोड़ो भी इस बात को, तुम जाकर इसे पहन के आ जाओ ना, पहन लो ना। क्या तुम नशे में हो? क्या? नहीं पैम, तुम वापस बाथरूम में जाओ और चेंज करके नहीं, तुम जाओ और तुम पहन कर आओ ये बकवास ड्रेस। अरे इससे अच्छा और क्या होगा, तुम्हें मौका मिल रहा है। ओह गॉड, अगर तुम 50 शीट्स जैसा कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है वो। मैं पूछ के बताता हूँ। अरे मुझे लगा तुमने ऑर्डर कर दिया होगा, मुझे भूख लगी है। बस पूछ के बताता हूँ। माइक, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे अभी गुस्सा दिला रहे हो। सारे दोस्त, मतलब हमारे सारे के सारे दोस्त एक बैंक्वेट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम्हें इस ड्रेस में देख सके। कैरन और मुझे ये लगा था कि आज डील हो जाएगी जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम में, इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें 80s की प्रॉम पार्टी देंगे। मुझे लगा था आज की रात सिर्फ हम दोनों ही हैं। बकायदा तुमने कुछ भी प्लान बनाया हो, प्लीज मुझे मत बताना। ऐसा मत बोलो कि बहुत देर हो चुकी है। मुझे घर वापस जाना है, खाना खाना है, घर जाना है, टाइम गुजारना है और काम करना है। तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारना? हाँ, मुझे बिल्कुल गुजारना है क्वालिटी टाइम तुम्हारे साथ, लेकिन पार्टी के बाद। माइकल। पैमेला। माइक। पैम। मैं ये सैंडल बदल सकती हूँ? हमारे पास वक्त नहीं है। मैं ऐसी लग रही हूँ मानो जैसे मैं कोई पिलग्रिम प्रॉम में जा रही हूँ। अच्छी लग रही हो। वो लगता है वो दोनों आ गए। जल्दी से छुप जाओ, काम पे लग जाओ, बैठ जाओ सब लोग।
स्वागत है आपका। हम स्वागत करते हैं पुलिस अमेरिकन वेटरन सोसाइटी में। थैंक यू। ए माइक, क्या कर रहे हो तुम? ओके। ये सब क्या चल रहा है? ओ, तो ऐसा लग रहा है कि टॉम क्रूज का दिन आज अच्छा चलिए जाएगा। अंदर चलते हैं। डे 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 डे। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! और ये क्या है? अरे, अब मैं फाइनली जैक यॉर्डन की गर्लफ्रेंड बन गई हूँ। तो ये सब बातें छोड़ो। ओके, शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बाथरूम ले जाऊंगी और तुम्हारा मेकअप ठीक करूंगी। वैसे तुम्हारा मेकअप खराब नहीं है, ज्यादा तो नहीं। हटो! हैप्पी बर्थडे। क्रॉकेट और टब बहुत अच्छे हैं। ये एल्विस है। हाय एल्विस। हाय ट्रेविस। हे क्यूटी पाई, हैप्पी बर्थडे। हाय ब्रो, कैसे हो तुम? तुम मेरे साथ आ जाओ। ओह गॉड, तुमने अपने परिवार को भी बुलाया है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो और ये पहनकर तुमने मुझे बिल्कुल चौंका दिया। हाँ, वैसे मैट ने तो फिटिंग करवाया है। कोई मुझे बताएगा कि बैठने की जगह कहाँ है? आपके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ मैं। ओह अच्छा, रुको। ओके। ओह पैम, फ्रेडी, तुम बहुत अच्छे लग मुझे रहे हो। पता है। बर्थडे की बधाई हो। वो सच में बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में, और तुम माफिया लग रहे हो इन कपड़ों में। थैंक्स डैड। कल मैं चार्ली से मिलने जा रहा हूँ। चार्ली कौन है? तुम अभी बैटिंग करते हो? वो लोग कहते हैं कि कोच मिलर रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, तो तुम बच्चों को सिखा भी सकते हो? हाँ, आपने तो पहले भी कहा था। कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। ओह यस। वाओ। हाँ, ये ऑनलाइन कोड है। इसका इस्तेमाल करके मेरे बिकने वाली फ्रेडी के सेमिनार में आ सकती हो और तुम भी अमीर बन सकती हो। तुम्हारा वेलकम है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मुझे पता था। काम ढूंढ रहे हो? अगर जरूरत है तो दुकान पर आ जाना मेरी। मुझे काम मिल गया पापा। आप जानते हैं ना कि मैं आपके पोते पोती का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि निर्वाणा 90s का बैंड है, पर उन्होंने एक्चुअली शुरुआत की थी 89 में। मैं उन्हें काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि वो वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? मुझे ज्वाइन करो। हाय, मैं पैम हूँ। शैनन। शैनन। शैनन? हाँ बिल्कुल मैंने पहचाना। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। राउडी। एक्सक्यूज मी। हाय पैम। हाय, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा है। याद नहीं आ रहा। हाई स्कूल से। हाँ। मैंने तुम्हें हाई स्कूल के बाद कभी नहीं देखा। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। एक्चुअली मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छी बात है। माइकल मोटरसाइकिल। वो आदमी जो सामने दिख रहा है, उसे जानते हो क्या तुम? शायद मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है कि वो एंडलेस में एक डांसर था और वो जैको के साथ रहता था। फिर तो पक्का वो सब करता होगा। पता है, मैंने खुद की 11th नॉवेल पब्लिश की है और 12th चाहो तो पब्लिश कर सकते हैं। और एंथोलॉजी वाली कविता भी मैंने ही लिखी थी। अच्छा है। क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए जाने देंगे? तो दोस्तों, हट जाओ रास्ते से। वो कौन है? किंडरगार्टन से 12th तक तुम्हारे साथ स्कूल में थी। क्या सच में? वो तो बहुत वियर्ड लग रही है। नहीं, वो बस थोड़ी अजीब लग रही है अपने लुक की वजह से। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कैसी हो तुम? क्या बता सकती हो? ये बता सकती हो कि आज रात का क्या भयंकर प्लान है? हाँ, कुछ भयंकर प्लान तो है, पर तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज पार्टी नहीं है। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं ध्यान रखूं कि तुम्हारा स्पेशल दिन खराब ना हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। मैडम डेकोय। पामेला, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
मुझे बहुत खुशी हुई जब माइकल मेरे घर आया और उसने मुझे बताया। मैं ना ही नहीं कह पाई। मैं कभी ना नहीं कहती। तुम्हें पता है, मेरी मॉम बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, आखिरी सांसें ले रही थी, फिर भी मैंने उन्हें जाने दिया। मुझे माफ करना सुनकर दुख हुआ। हमें कैसे पता चलेगा कि हम वाकई जिंदा हैं? तभी जब हम किसी दुख से गुजरेंगे, है ना? ये तय है। पर आज हम पार्टी करेंगे। ओके, बर्थडे गर्ल को छोड़ दो, हम बाद में मिलते हैं। वाओ, ओह वाओ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये सुवेनियर है, मैंने टिम्बर से लिया था। तुम्हारा मतलब टिंडर? नहीं, टिंडर में सिर्फ बड़े लोग ही शॉपिंग करते हैं। तुम 5'3" हो। हाँ, और तुम्हें इतना बड़ा बनना होगा ताकि तुम भी ये कर सको। अच्छा, तो ये बर्थडे आइडिया किसका था? माइक का, और किसका? वो महीनों से प्लानिंग कर रहा है और उसे लगा तुम आज डील क्लोज कर दोगी। अच्छा हाँ, पर आज का दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि तुम उस पर पूरा ध्यान दो। माफ करना। मैं भूल गई थी कि मैडम डेको यहाँ पर है। यकीन नहीं हो रहा, ट्रेविस अपनी फ्रेंच टीचर को भी प्रॉम पार्टी में लेकर आया है। मुझे भी नहीं। फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही तो, मुझे ये पक्का पता है कि 5 से 10% वो मुझे पक्का टोकेगी। जब से तुम दोनों अलग हुए हो, तुम ट्रेविस और मैं? हाँ, मैंने सोचा तुम लोग। क्या क्या? नहीं नहीं, ठीक है। मेरा मतलब कुछ सालों पहले। हे, ओ, हे, आखिर तुम कहाँ छिपी हुई थी? किस पागल ने सैलेड ऑर्डर किया था? क्योंकि वो सारा सैलेड अंदर गिर गया। शायद मेरे पर्स में कुछ जिंजर रखा हुआ है। उसे तुम अपने पास ही रखो और अपने बच्चों को खिला देना। सुनो, इसे मैं पूरी रात इस्तेमाल करूंगी। अपना काम जारी रखो। किस तरह की अजीब सी औरत है ये। उसने अपने हाथ तक नहीं धोए। मुंह बंद करो। काफी अच्छा लग रहा है ना? हाँ। हाँ। ये ठीक है। क्या था ये? माय गॉड, कैसा लगा तुम्हें? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, पर तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम ही सार्जेंट सिल्वेस्टर हो? तुम सही हो, पर लोग मुझे सार कब बुलाते हैं। सार्ज। अच्छा सुनो ना, अगर तुम चाहो तो ये पार्टी पूरी रात चल सकती है। क्या कहते हो? अच्छा, तुम्हें पता है मैं FDR से पहले के था, तो यहाँ तो आपकी दान नहीं करने वाली। आपके पास पूरी रात है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास काबिल दोस्त जो डॉक्टर भी हैं, वो आपको दिशा दिखाने में मदद करेंगे। क्योंकि जब वो छोटे थे तब तो उन्हें एक नमूना समझा जाता था, जब तक उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोर कर रहा हूं। और ये एक अच्छी थीम पार्टी है, हम मजे करने आए हैं। सारी मुसीबतें छोड़कर, कोई बीवी को छोड़कर, कोई बच्चों को छोड़कर, मैं पिछले 16 सालों से यही करते आया हूं। और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब उन्हें मेरा काम पसंद आ रहा है। तो हमारे बीच एक डॉक्टर हैं जो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी में उतने अनुभव लिए हुए हैं, तो उन्हें मदद करने का हक है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक अंतिम बात कहूंगा कि ये गाना उन लोगों के लिए है जो इस धरती पर राज करना चाहते हैं। हाँ। ये तो हद हो गई। चुड़ैलें दिख रही हैं। भूत भी।
आखिर ये सब लोग कौन है? मैंने माइक को बोला था कि फेसबुक इनवाइट को प्राइवेट करो। क्या ये कोई फेसबुक पर इवेंट हो रहा है? अच्छा, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? मुझे क्या पता 117 अजनबी लोग मेरी बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हैं और मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। अजनबी? ये सभी लोग तो हमारे साथ हाई स्कूल में थे, याद है तुम्हें? ठीक है, ये बताओ कि ये बर्थडे पार्टी है या फिर रीयूनियन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हे जेनी। हे हाय जैन। हेलो। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर बैठ सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें माउथ फ्रेशनर यूज करना चाहिए। ओह थैंक यू। तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? तुम्हें धीरे बोलने की जरूरत नहीं, इन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती। किसी को भी नहीं। अब ये देखो, बनानास नहीं। तो तुम अभी भी फ्रेंच पढ़ाती हो क्या? नहीं, 2 साल पहले ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। 2 साल पहले क्यों? मैं जानती हूँ ये डिफिकल्ट फैसला था, पर मेरे पति तकलीफ से गुजर रहे थे तो मुझे करना पड़ा। दरअसल वो बाइपोलर। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था और वो इस सब के लिए मुझे ब्लेम कर रहे थे। वो कहते थे कि तुम जंगल चली जाओ। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा 3 सालों के लिए, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गए। ये लोग कहाँ मिले? मेरे सेमिनार में प्राग में। ये दोनों जानी मानी हस्ती हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए मेरे साथ काम कर रही हैं, जैसा कि बाकी सब करते हैं। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली? सच कहूं तो ये दोनों खुद के लिए काफी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको पता है, आप वो पहली टीचर थी जिन्होंने मुझे सी दिया था हाई स्कूल में। क्या मैंने गलत किया था? सच कहूं तो नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। कभी कभी ज्यादा पी लेती हूँ, तब तक जब तक मुझे कुछ फील नहीं होता। तुम्हारे डिसअपॉइंटमेंट ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। माइक, बहुत दिनों के बाद मिले हो। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारे साथ बेसबॉल में क्या हुआ था? मीन ने तुम्हें टीवी पर देखा था। हाँ, हो सकता है देखा हो। वहाँ मेरी थोड़ी झड़प हो गई थी और यहाँ मेरे कंधे पर लग गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा। ओह अच्छा, ऐसी बात थी क्या? ये तो बच्चों का खेल लगता है, अपना ख्याल रखना। हाँ। हाय। मैं अभी सोच रही थी कि वो एल्जेब्रा ट्रिग क्या पूरी रात यही है? ओह, क्या उसके पास था एल्जेब्रा और वो दोनों? हाँ। तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या नाम था उसका? स्टिंग। तुम्हें मेरा कुत्ता याद है? बिल्कुल। एक महंगा पिज्जा जो उसने पूरा खा लिया था। वाह, आपकी याददाश्त तो काफी अच्छी है। मेमोरी, मुझे वक्त लग जाता है और मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता है, और पुरानी बातें तो दूर की बात है मेरे लिए। एग्जाम्स में भी मुझे दिक्कत आती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ओह, हम वहाँ भी साथ में थे। नहीं। इसीलिए तुमने लॉ की पढ़ाई की थी? हाँ, मैंने की थी। पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करती थी, और वो भी मैं उस रात से। ओके, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, मुझे भी। क्या हुआ? एक मिनट बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर नहीं। बोल देना, मैं वहाँ पर आ जाऊँ। अरे रुको, इधर चलते हैं ना, इस तरफ आ जाओ, एक फोटो लेते हैं ना। आ जाओ, यहाँ पर घूम जाओ, पेट थोड़ा सा फुलाओ, ऐसा लगना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बाप बनने जा रहा हूँ। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो?
कम ऑन, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या ये करके? फिलहाल नहीं, मुझे लगता है मुझे दौरा पड़ रहा है। क्या? लेकिन क्यों? मुझे पूरा यकीन है कि वो जो औरत है जिसके बाल अजीब से है ना, शेनन क्लेसनन? हाँ वही, वो एक स्टॉकर है और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। वो बस तुम्हारे बारे में जानकारी रखना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब जानकारी इतनी जो मैंने किसी को नहीं बताई और केक काटने से पहले वो मुझे आके बताई। नहीं 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 नहीं, अरे हद है। मैं केक लाना भूल गया, मुझे माफ कर देना। माइक, हद है। मुझे बस केक ही चाहिए था। मुझे लगा तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताना। मेरे सामने ऑप्शंस मत रखो, तुम्हें बुरा लग जाएगा। देखो मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी और मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर तुम ये भूल गए कि हम हाई स्कूल में कैसे थे तो क्या फर्क पड़ता है कि हम स्कूल में कैसे थे? बताती हूँ। ए, कि हम हमेशा साथ में रहते थे, और बी, हम दोनों स्कूल के यूनिफॉर्म में इन लोगों से बच के रहते थे, और सी, तुम्हारे घर पे जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। हाँ, तब हम बच्चे थे, तब किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ लोगों को फर्क पड़ता था, ये कोई मजाक की बात नहीं। ये बस ह्यूमन बिहेवियर है। तुम गलत हो, और अब मेरी बात सुनो, ठीक है? द हैमबर्गर, ठीक है, मतलब कि ट्रडी के साथ। मैं उसके साथ ना ही हाई स्कूल में कभी पढ़ा और ना ही कभी उसके फार्म हाउस पर गया, ठीक है? उसकी बिल्ली का नाम सेल्विस्टर था और निक नेम स्लाई था, और जब वो सोफे पर बैठती तो इंसान जैसी लगती थी और उसके गले में पट्टा रहता था, है ना? कितनी अच्छी और अजीब बात है ना? ओह थैंक यू। ठीक है सर। देखो, यहाँ पर सब खुश हैं, ठीक है? और ये सब तुम्हारे लिए आए हैं, कितनी अच्छी बात है। ठीक है। हे डॉक्टर, हे, क्या तुम एक गाना बजा सकते हो? वो गाना पता है ना जिसमें गिटार बजता है, बूम बूम बूम, बिल्कुल ड्रम की तरह से। ठीक है। नहीं, रुकिए, वो गाना ऐसा है कि गिटार बहुत हल्के से बजते हैं, और फिर डिडिंग डिडिंग बूम 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 ड्रम के साथ। किसने गाया है? अरे आप जानते हैं, वो बंदा जो ड्रम बहुत अच्छा बजाता है। फिल कॉलिन? नहीं, अरे यार नहीं आ रहा। वो गाना जो एक आदमी बहुत अच्छे से बजाता है। अरे अगर नहीं पता है तो इंटरनेट पर देख लो। देखो मिल जाएगा। ओके, ठीक है डॉक्टर सुरेश। ये तुमने अभी क्या किया? क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। अरे भागो मत, मैं तुम्हारा गाना बजा दूंगा। तो हम चलते हैं। पर तुम्हें पता है उस आदमी के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं? हाँ, इसीलिए वो लड़कियों से घिरे रहते हैं हमेशा। कैसे करते होंगे ये? किसी को नहीं पता। मैं कोशिश करूंगा। यो माइक वो हाँ। नहीं। हे, क्या तुम्हें स्मोक करना है? कोई मेरी पैंट लेके चला गया। ओह, क्या तुम्हें पैंट चाहिए स्मोक करने के लिए? नहीं, मैं स्मोक कर चुका हूँ। रहने भी दो। ये जो पार्टी चल रही है ना, सच बताऊं, ये बहुत ही बकवास और फालतू की पार्टी है। क्या बक रहे हो तुम? ये पार्टी बहुत ही अलग है। ये पार्टी तुमने अरेंज की है? सुनो, देखो, तुम किसी और से मत कहना, पैम को अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं मुझे। हाँ रिचर्ड, मुझे पता है तुम नहीं चाहते थे कि दिन ऐसे खत्म हो, मुझे पता है। ओह पैम, तुम मुझे कितना अच्छे से समझती हो। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, ये सही टाइम नहीं है डील करने के लिए। तुम बस एक बार उससे बात करके देखो। तुम दोनों एक ही चैरिटी इवेंट में हो, उससे बात करो और खत्म करो। इस आदमी को समझना नामुमकिन है। अपने घमंड के लिए कुछ गलत मत कर देना, ठीक है ना? चलो बाय। हाय, कॉल पे थी ना? लगता है काफी स्ट्रेसफुल कॉल था। क्या तुम एक टीचर हो? नहीं, मैं बस एक लॉयर हूँ। ओह आई सी।
माफ करना। कोई बात नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है तुमने 25 साल की उम्र में एवरेस्ट की चढ़ाई की होगी और फिर शादी की होगी पेरुवियन शामन से, जिसने तुम्हें रहने का ढंग सिखाया होगा, जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया होगा, तुम्हारी हमसफर बनी। अब मुझे बता भी दो कि तुम्हारा अतीत क्या है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ये बात सच है कि मैं क्रूज से अलास्का गया था मेरी एक्स वाइफ और बच्चों के साथ, पर ये तब की बात है जब उसने क्लेयर से शादी नहीं की थी। हम दोनों डॉक्टर हैं। तुम दोनों ही डॉक्टर हो? हाँ। ये सच है। मुझे लगा कि आपको ताजुब होगा ये जानकर कि मेरी बीवी ने एक औरत के लिए मुझे छोड़ दिया था। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो। 1 मिनट माफ करना। 24/7। हाँ, पेमेंट काफी अच्छी है। मेरा फॉर्मल अटायर देखकर भ्रम में मत रहना। मुझे क्लाइंट के साथ लाखों की डील करनी पड़ती है और पूरे दिन के बाद घर जा पाती हूँ ताकि मुझे वक्त से पहले चेक मिल जाए और मैं ऑटो का बिल पे कर पाऊँ। बस ऐसे ही चल रहा है। बढ़िया है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? सिगरेट का एक पैकेट और हार्ड ड्रिंक भी। मैंने पैम के लिए छोड़ दिया है। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें हेल्थ क्लास याद है? टबैको रिहैब सेंटर। क्या? फिलिस ओकानो। हाँ। ओह हाँ, फिलिस। ओह, याद आ गया। ओके। बाकी दोनों का क्या हुआ? ओह, दोनों आंखें बदलनी पड़ी क्योंकि वो बुनाई का काम करती थी। अच्छा मजाक था। तुम अच्छी लग रही हो। ओह, थैंक यू। तुम भी। एकदम साफ झूठ है। मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे हाई स्कूल का कोई मोटा सा मास्टर हो। ओह, तुम्हारी पैंट को क्या हुआ? ओह, आज हम हाई स्कूल वाले रीयूनियन कर रहे हैं बैंक्वेट हॉल में। आज पैम का बर्थडे है और तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो शिफ्ट के बाद। ओह नहीं, मुझे पूरी रात यहीं रहना पड़ेगा। पैम को मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। हाँ, मैं कह दूंगा। अब सुनो ना। हाँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुमने कभी भी टॉयलेट पेपर फेंक कर मेरे पेरेंट्स को तंग किया था? क्या? तुम्हें याद नहीं? हाई स्कूल में काफी बार किया था और अब फिर से उनके साथ यही हो रहा है और अब उन्होंने कैमरा लगा दिया है। स्मार्ट। मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि वो आदमी बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा था। बताओ। ये तो बहुत अजीब है। तुम दोनों को तो पता है कि मैं कॉलेज के समय से उनके साथ नहीं रहती। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने परिवार के साथ नहीं रहती हो। हाँ। तुम बड़ी हो गई हो, कहीं और रहती हो। जैसे मैं अपने परिवार के साथ नहीं, मैं अपनी माँ के साथ अब भी रहता हूँ क्योंकि मैं निकम्मा हूँ। मुझे काम करना पसंद नहीं है। आँख में प्रॉब्लम भी है। चलो। हाँ, शुक्रिया। बस अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छी हो। ओके, थैंक यू। फिर से आना। वो हम पर लाइन मार रही थी। हम पर? हाँ। मैंने उसके पिता को तंग किया था जब वो डेव ग्रोल ड्रम बजाता था। अरे यार, हम कितने बड़े गधे हैं। अरे पैम भी मुझे ये बोलती है, पर मुझे नहीं लगता। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ दोस्त, गधे के बच्चे हैं। इसे तो लगता है कि तुम अब भी उन्हें तंग करते हो। ऐसा उसी ने कहा? नहीं, उसने कहा कि एक आदमी जो मेरे जैसा दिखता है वो ये करता है। थैंक यू। वेलकम।
डॉगी, एकदम डॉगी तुम ठीक प्लेन हो? की तरह लैंड उठो, हुए हैं। उठो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, उठो, आंखें खोलो। क्या हुआ? हाँ हाँ, आराम से, आराम से, गहरी सांसें लो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे। नो 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 डॉगी, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, आराम से, आराम से। हम दोनों फिलिस के स्टोर में गए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। संभल कर, संभल कर। इससे तुम्हें काफी हद तक राहत मिलेगी। ये नया ब्रांड है। पैम, हम दोनों स्टोर गए थे, वहाँ फिलिस मिली थी। ओह बेचारी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जरा ये सोचो कि आधी जिंदगी इसी में चली जाती कि अपना घर कैसे संभाले, वो भी अकेले। वाकई घर कितना जरूरी होता है। सही कहा। जैसे कि जिंदगी में कोई अच्छा सा मुकाम हासिल कर लेना। हाई स्कूल और माँ को छोड़ने तक। पैम, तुम्हें याद है क्या? हाँ, मुझे याद है। पुलिस से भागती थी, ट्रैविस पड़ोसी के यहाँ जाकर उल्टियाँ करती थी। बड़ी कॉमन सी बात थी। हाँ, पूरी तरह याद आ गया, काफी मजेदार थी। चलो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चलो ठीक है, सबके लिए एक एक शॉट लगाओ मैवरिक। ऑलराइट, चलो चलो सब लोग यहाँ आ जाओ। रेडी? शैनन, अपने अपने शॉट्स उठाओ। फिल, कॉलिन, ठीक है दोस्तों, तो ये थैंक यू। अभी अभी सुनने में आया है कि हम कई सालों से साथ हैं, शायद डेकेड बीत गया, हाई स्कूल के टाइम से। हमने एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं किया कभी। अगर किसी को मेरी कोई हरकत गलत लगी हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। देखो, अब मुझ पर किसी का भी ध्यान मैं चाहता हूँ कि ये मैं बरकरार रखूं, अब जबकि हम बड़े हो गए हैं और हमारे सर पे बहुत ज्यादा कर्जा भी है। देखो, हाई स्कूल से अब तक बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज जो अब तक नहीं बदली, वो है इसके लिए मेरा प्यार। यही है ये। पैम, जो तब तुम मेरे लिए थी, वो अब भी मेरे लिए हो। आई लव यू। हैप्पी बर्थडे। Cheers. Cheers. काफी मजा आ रहा है ना? मेरी थेरेपिस्ट और मैंने काफी देर तक बातचीत की है। ठीक है। और मैंने उसे उस रात के बारे में भी बता दिया है। और उसने कहा है कि मेरी जिंदगी सुधर गई। उस रात के इंसिडेंट के बाद हमसे गलतियां तो हो ही जाती है ना, आखिरकार हम इंसान ही तो हैं। पता नहीं तुमने मेरी 6th पब्लिश्ड बुक पढ़ी है कि नहीं? मैंने खुद पब्लिश की थी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। अब मैं किसी के भी साथ आराम से सो पाती हूँ काफी समय तक। उस कोर्स के बाद से। अब समझ रही हो ना? ये मुझे सूंघ रही है। क्या हो रहा है शैनन? क्या तुम्हें वो चीज दिख रही है? कौन सी चीज? जो वो वहां पर है। यूरिनल पॉट। मुझे लगता है उसे केक कहते हैं। यूरिनल केक। कभी ऐसा हुआ है तुम दोनों के साथ कि पीने के बाद किसी ने आकर पीछे से हमला किया हो और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है और तुमने उस मौके का फायदा उठाया है, मानो कि जैसे कोई ये एक खेल हो? कभी किया है ऐसा? वो मेरा तो हो गया भाई। हाँ, मेरा भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों को मैं कार्ड देता हूं, ये देखो। अरे बाप रे, लगभग 10 साल पुराना है। ये तुम्हारे लिए, ले लो ले लो। ओह थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। चलो अब हम वहां मिलेंगे। नहीं डॉगी, ऐसा मत करना, उसे मत छूना। डॉगी नहीं, क्या कर रहे हो? ओह, ये खुला हुआ नहीं है। ये तुम्हारे काम का नहीं है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। नहीं डॉगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, रुको। तो ठीक है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि बहुत सारा नशा हो, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा, बता सकते हो? कैरन। गाइस, Hey,
कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिखाओ जरा, कितना पुराना है ये? शायद 10 साल पुराना। इसका रंग फीका पड़ गया है। इससे क्या क्या बुरा हो सकता है? दिमाग के इशू, पैरालिसिस, अचानक से मौत, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल है बताना। क्या मैंने यहाँ आकर तुम लोगों को डरा दिया? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी गलत नहीं। एक्चुअली इन लोगों को बहुत पुराना कोकेन मिला है, तो हम सोच रहे थे कि ये लेने लायक है या नहीं। जरा मुझे दिखाओ वो। ठीक है मैम। ओह, ये तो कम। ओह मैम, आप ठीक तो हैं ना? काफी दिनों बाद कुछ अच्छा मिला है। देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं अब ठीक है। तो तुम क्या कह रहे थे, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है? देखिए, मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं, मुझे ये पता है कि इसे कैसे लेते हैं? नाक के पास रखो और अंदर खींचो और सब भूल जाओ। ओके, मैं जाकर देखती हूँ कि केटर्स ने खाना सही से बनाया है या नहीं। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ, ठीक है? तुम सच में बहुत अच्छे दिखते हो। थैंक यू। और आज की ये शाम आप लोगों के साथ कुछ अलग ही मजे दे रही है। तो पेश है आज का अगला गाना। ये एंजॉय। चलो अब जरा सा घूम जाओ। सही है सही, अब थोड़ा पास आ जाओ। हे, ओ कैसे हो तुम? ये तुम मुझे बताओ। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम कुछ पियोगे? कुछ और? नहीं, बस तुम मेरी दोस्त से थोड़ा सा दूर रहो। ओह, तो क्या तुम दोनों साथ में हो? हाँ, हम नहीं। ओके ऑलराइट। मैन, क्या तुम वहां जाओगे और 2 ग्लास लेकर आओगे? हम बस साथ में डांस कर रहे थे। अच्छा, तुम दोनों बस डांस कर रहे थे। ये बोरे का सूट पहन के तो खुद को स्मार्ट समझता है। बोरे का सूट? हाँ, क्योंकि मुझे डेली लोहे के जूते नहीं पहनने पड़ते हैं। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? टाइम तो बदल चुका है। तुम अभी भी वही हाई स्कूल वाले हो, उससे भी बनकर। तुम्हें याद है तुमने मेरे फोन के साथ बहुत बुरा किया था? यस, तुम मेरे फोन को क्या कहते थे? बकवास फोन। बकवास फोन। बकवास फोन। ये बहुत मजेदार था। मेरे पापा ने मुझे देने के लिए 6 महीने तक पैसे सेव किए थे। मैं घर जाकर उन्हें वो नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उस रात पार्किंग लॉट में उसे सबके सामने साफ किया। हाँ, तुमने बर्बादी की थी, लेकिन आज तुम मेरा यहां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर मैं तुम्हें 1 महीना भी दूं तो मेरी किसी चीज को बर्बाद नहीं कर सकते। हार में जाओ तुम। ट्रैविस, बस करो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छा, तू डांस करना चाहता है? अरे मैंने अभी बस
डांस किया है। वो भी तुम्हारी पत्नी के साथ। छोड़ दो, कर रहा हूँ। माइक कहाँ है? मुझे प्रॉम किंग का क्राउन अभी चाहिए, समझे? चलो चलें। लड़ाई करने से अच्छा बोनस मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट चेक करो। बेटा, हमें अब निकलना होगा। अरे अभी इतनी जल्दी? मुझे लगा था ये प्रोग्राम 2 राउंड से ज्यादा चलेगा। मुझे नहीं लगता मेरे पैसे वसूल हुए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं दरवाजे तक छोड़ कर आता हूँ। भाड़ में जाए वो। हाँ, वो भाड़ में जाए। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें उसने मारकर जमीन पर गिरा नहीं दिया होता, तुम्हारे पूरे शरीर को जकड़ नहीं दिया होता, तो तुम पक्का उसका मुंह तोड़ दिए होते। मेरी धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। ये आम बात है। वैसे ये सब लड़ाई की वजह से है या फिर कोकीन की वजह से? हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा था बेटा, शानदार पार्टी थी। खुशी है आप लोगों को अच्छा लगा। हमें नहीं, पर किसी को तो। आप ठीक हैं पापा? ठीक नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। उस नौकरी के लिए कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है? कौन सी नौकरी? अरे वही नौकरी, ज्यादा से ज्यादा मना करेंगे ना। कौन सी नौकरी? तुम भी ना। ये शाम इंसानियत पर मेरे भरोसे का इम्तिहान ले रही है। ओह, अरे यार, ये बदबू कैसी है? शायद वो मेरी वजह से, क्योंकि मुझसे बदबू आ रही है। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ से निकलो और पैम को भेजो। ऑलराइट। अरे यार, वो बाहर नहीं है यार। कहाँ चली गई? हे, एक फोटो बिना शर्ट के खिंचवाएं? हाँ चलो, हो जाएगा। हिटीज के गाने बहुत हो गए। क्या सच में? हमें गाने बदलने चाहिए, सही कहा? यस। हाई फाइव। चाबी मुझे दो। अच्छा ठीक है, ये लो। आगे बढ़ते हैं। बोरिंग। हे, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? तुम्हारी बीवी? हाँ। ओके, तुम्हें पता है हिब्रू में बीवी को ईशा कहते हैं, जिसका मतलब होता है मेरी औरत, और ईश का मतलब होता है आदमी। मदद के लिए शुक्रिया। Come on. तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मुझे बस एक ईमेल भेजने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी, बस। ईमेल? यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है पैम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब तक मैं इस बात को मानना नहीं चाहता था, पर इससे बाहर नहीं जा सकते। तुम डील की भूखी हो। ये बोलना सही नहीं है। लगता नहीं कि तुम अभी इस हालत में हो कि समझ सको कि क्या सही है। काउंसलर, इस डील के लिए गुड लक। माइक रुको, मैं ये तुम्हारे लिए करती हूँ, बच्चों के लिए करती हूँ, हमारे लिए करती हूँ।
बीवी मिली? हाँ मिले। कहाँ है वो? नौकरों के कमरे में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल कर रही थी। ओह, ये तो बेहतरीन लगता है। तुम्हारे सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तुमने मैडम। शर्ट नहीं पहनी है? हाँ, मैंने नहीं पहनी है। संघर्ष के बिना कोई जुनून नहीं होता। क्या मतलब? अल्बर्ट कैमू। आपका दोस्त? नहीं, बस एक हीरो है जिसमें जिगरा है खुद को चुनौती देने का। ओह अच्छा। तुम्हें पता है सरप्राइज का मतलब है कि मेहमान तुमसे छुप कर रहे, ना कि तुम उनसे छुप कर रहो। क्या बात है? मैं बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ। लोग बड़े होने के बारे में ये नहीं बताते कि ये कितना थका देने वाला होता है। तुम ठीक हो ना? ये सब पैक करने में हेल्प करोगी? हाँ बिल्कुल हेल्प करूंगी। ये फैक्स मशीन है क्या? हाँ। पागल हो तुम। ओह ट्रैविस, कितना अच्छा लग रहा है। कीड़े की तरह मैं तुम्हारे चेहरे को नोचना चाहती हूँ। ओके ठीक है, बस चुप करो, चुप करो। तुम मेरे जुनून को शांत नहीं कर सकते। चुप रहो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? चुपचाप बस करो, काम बस करते करो, रहो। तुम पागल हो गई हो। जुनून की बस जरूरत है, मेरे क्या हो जैसे गया है तुम्हें? जुनून की। जेंटलमैन, मुझे लगता है कि तुम लोगों की दोस्त पागल हो गई है। कैरन रुक जाओ। कैरन 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 रुक जाओ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बंद करो। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ और मेरे मुंह में एक बर्गर डाल दो। और मैं बता दूं कि मैं हिपस्टर तुम्हारे बोलने से पहले से हूं। तुमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट दिखाकर हमारा मजाक उड़ाया है, जैसा तुमने ठीक बचपन में किया था। उस वक्त हमारे पास फोन भी नहीं थे एल्वायरा। हम पेपर पर तुम्हारे पिक्चर बनाकर एक दूसरे को दिया करते थे, पता है? हे, क्या तुम बस अभी-अभी यहाँ से मैं यहाँ गलती से आ गया, मैं किसी और को ढूंढ रहा था। क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? सॉरी, मैं स्मोक नहीं करती। तुम एक वहम में रहने वाली जिंदगी में हो। तुम जैसे लोग मुझे पसंद नहीं। तुम लोग उठो। थैंक यू। तुम ठीक हो? थैंक यू। तुम सब अभी भी वैसे ही बर्बाद हो जैसे स्कूल में थे। बस अब तुम लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं। उसमें भी ज्यादातर पैम की है। बहुत बढ़िया पैम, मैं तुम्हारा फैन हूँ। थैंक यू। अब ये क्या बकवास है? हाँ? क्या मतलब बकवास है? तुम्हारे चेहरे पर तुमसे माइक और आइक्स की बू आ रही है। सच में? क्या? फिर से प्रोफेसर मैकेनिकल के साथ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये ना बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, जाओ, भाड़ में जाओ तुम। शांत हो जाओ। तुम छुओ मत मुझे। अब बस बहुत हो गया। तुम लोग किसी जहाज के नाविकों से भी बदतर हो जिनको एक रात का पास मिला हो। तुम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। बस अब बहुत हो चुका। कोई ऐसी जगह जो इससे ज्यादा बदतर हो। पर अभी तक हमने केक नहीं खाया। केक के बारे में बकवास करना बंद करो डगी। अगर कुछ छूट जाए तो तुम लोग कल सुबह रास्ते पर से उठा सकते हो। बहुत बढ़िया। ओह गॉड, यकीन नहीं होता इस बकवास के लिए मैंने एनिमल प्लेनेट छोड़ दिया। किस किस को दारू चाहिए बताओ? डाउनटाउन में मेरा एक बार है, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मुनाफा अच्छा है। तुम्हारा बार? चलो मैं साथ हूँ। ठीक है।
और हाँ माइकल, मुझे पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। दिन भर घर में बच्चों के साथ बैठे रहना और दुख भरे पोस्ट करना, मुझे लगा तुम्हें खुशी मिलेगी। लेकिन अगर तुम काम करके कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ बाहर जा रहा हूं। क्या तुम लोग टैक्सी से मेरी मम्मी के घर चलना चाहोगे? ठीक है। मैं खुद के लिए टैक्सी कर लूंगी। इस तरह से तो सुबह 7 बजे तक मेरा नशा उतर ही जाएगा, ताकि मैं योगा भी कर सकूं। तुम लोग सच में यही सोच रहे हो? क्या? किस्मत को कोस कर बस अब घर चले जाओगे तुम लोग? वेल, मैंने उस बुड्ढे से बात करने की कोशिश की, पर वो हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मेरा मतलब वहाँ अंदर जाना नहीं है। यहाँ तो तुम लोग ही मेरा बर्थडे मनाना चाहते थे, है ना? लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी ये ख्याल आया कि मैं अपने बर्थडे पे आखिर क्या करना चाहती हूँ? अच्छा, तो तुम कहाँ जाना चाहती हो आज रात? मुझे नहीं पता, कोई ऐसी जगह जो मैंने चुनी हो, बस। शायद तुम कभी ये तय नहीं करती क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। चुप रहो डग, मैं सोच रही हूँ। ओह, ठीक है। मैं बताऊँ मुझे क्या करना है? हाँ बताओ। मैं टॉयलेट पेपर फेंकना चाहती हूँ। क्या? 4 आंखों वाला जानती हो उनके पास 2 आंखें हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अंधी है या नहीं है, मुझे बस वो करना है, बस। खतरनाक। उसके पापा ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। उसे आसानी से बंद कर सकते हैं। क्या मैंने ये सारा मसाला इंटरनेट पर पढ़ा है। क्या तुम सीरियस हो काउंसलर? हाँ, चाहे ये गैर कानूनी काम ही क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है। तुम कभी भी मुझे उस बेचारी लड़की का घर तबाह करने के लिए अपने साथ नहीं ले गई। ओह माय गॉड, क्या हमने तुम्हारा दिल दुखाया है? दोस्तों, मैंने पूरी जवानी ये सोचा कि तुम लोगों के साथ ऐसा वक्त बिताऊंगी, और मैं यही करना चाहती थी। हाँ? तो तुम यही करो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए दारू लेने जा रही हूँ। हे, क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तुम इसे टॉयलेट पेपर फेंकने के लिए ले जाओ। तुमने कर दिखाया डग। मुझे तुम पर गर्व है। अगर मैं थोड़ी शराब पीती और तुम्हारे सारे दांत होते तो हम दोनों के बीच कुछ हो सकता था। प्रोग्रेस हो रहा है डग, मुमकिन लग रहा है। फेलिस घर चली गई? हाँ, चली गई। क्या तुम वही बंदे हो जो उसके घर पे टॉयलेट पेपर्स फेंकते रहते हो? नहीं, बस मुझे ज्यादा चाहिए होते हैं। फिर तो तुम काम के बंदे हो। हाँ। हे मिस्टर वेब, कार आ गई है, चलो चलें। हर किसी का कोई खास मेहमान होता है। तुम्हें पिज्जा खाते हुए देखा था। बहुत स्वादिष्ट था। सुनो, लाइट बंद कर दोगे प्लीज? मैंने कहा लाइट बंद कर दो। मुझे लगता है इसे डर है हम इसके साथ कुछ कर ना दे। रुको। क्या हुआ? यही तो है। क्या यही गाना तो मैं पूरी रात रिक्वेस्ट कर रहा था। ये गाना 2006 का है। हाँ डगी, तुम्हें याद है बैंड यही गाना बजा रही थी जब तुम कूद के स्टेज पर गए और अपनी गर्दन तोड़ ली थी? हाँ, मेरी हड्डियां कमजोर हैं ना। इसे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा था। चलने का वक्त हो गया दोस्तों। फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूं ना, तुम्हें 4 स्टार्स दूंगी। 1 कट करूंगी क्योंकि अजीब बदबू आ रही है। दोस्तों, क्या हम ये सच में कर रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ और बेबी सीटर की पेमेंट बढ़ती जा रही है। इतने बुज़दिल मत बनो माइक। ओह, बुज़दिल? अच्छा, 3 घंटे पहले तो तुम मुझे कायर बोल रही थी और अब बुज़दिल बोल रही हो। तो पक्का बताओ ना कैप्टन टीपी। जब से ये भयंकर पार्टी हुई है ना, तब से हालात लगभग अस्थिर ही हो गए हैं। इनमें से मुझे एक दे दो। हाँ बिल्कुल। जल्दी जल्दी। थैंक यू। पता है कल एक नया दिन होगा। बिल्कुल। क्या कर रही हो? ये 40 साल वाली पैम मुझे पसंद है। मैं अंदर जा रही हूँ। ओ, आज तूफान मचा देंगे।
मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ मैम? तुम्हें पता है पिछला आदमी जिसने ये कहा था उसके साथ क्या हुआ था? तुमने उसे अपने जुनून का एक ट्रेलर दिखाया और पूरी फिल्म दिखाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो तुम्हें पाने के लिए बेचैन और बेताब होता रहा। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं बेवकूफ नहीं हूं। सुनो, क्या वो पैम की बहन है? मैं स्टीवन पैट्रिक मॉरिसन बनूंगी। तुम्हारी बहन तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, वो है। वो कामचोर लोगों के बीच फंस गई, लेकिन वो फिर भी हम सबसे ज्यादा मेहनत करती है और उसके बाद भी 2 बच्चों का ख्याल रखती है। हाँ, ये सब तो बहुत ही आम बात है। वो एक लौती लॉयर तो नहीं है ना? पैम को वो रात याद नहीं जब मैंने अपनी जवानी की हदें पार की थी। अंधेरे लिविंग रूम में सोते हुए मेरे स्लीपिंग बैग के अंदर वो आती थी और मेरी चोट को सहलाती थी। क्या बोल रही हो तुम? वो पैम नहीं, वो मैं थी। नहीं। हाँ, तुम नहीं थी। हाँ। रुको, सच में? याद है स्टिंग ने तकिए पर उल्टी कर दी थी और हमें एक ही तकिए को शेयर करना पड़ गया था। ओह माय गॉड। हाँ, मैं पहली बार इतनी तेज लड़की से मिली थी। बहुत मिस्टीरियस, शॉर्ट स्कर्ट पहनकर सिगार जला रही थी और डॉक मार्टन के जूते पहनकर। हाँ, कॉलेज के पहले साल में मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को डेट किया था। झूठ बोल रही हो? सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है वर्ल्ड वॉर 2 में क्लाउस मार्टिन्स डॉक्टर थे। बवेरियन आल्प्स पर अटैक करते वक्त उनका पैर टूट गया था। उन्हें समझ में आया कि उनके जूते सुविधाजनक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया। ओके, इस जानकारी के लिए थैंक्स फ्रैंक। तो ये शाही टुकड़ा आज कहाँ है? मेल बॉक्स खोल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। क्लोज टॉयलेट पेपर फेंक रहे हैं। तुमने टॉयलेट पेपर कहा? ओह, इनकी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे लगा वो अभी तक सोई हुई है। चलो फेंकते हैं। इसे यहाँ लाओ, इस तरफ से। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, फेंको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो। क्या कर रहे हो? रास्ते से हटो। अब तुम्हारी बारी है, तुम फेंको। ओ, ये बढ़िया था। ये बहुत अच्छा है। सच में। मुझे लगता है मैं यही करने के लिए बना हूं। टीपी होम्स, मैं सीरियस हूं यार। अगर मैं यही करने के लिए बना हूं तो मैंने सब कुछ बहुत साधारण सा अपनाया, हमेशा से साधारण। मतलब पैम एक अच्छी लॉयर है, कैरन एक खूबसूरत स्टोर विंडो डिजाइन कर सकती है जो सबको पसंद आएगी, और माइक तेज रफ्तार से बेसबॉल फेंक सकता है। और क्या है जो तुम नहीं कर सकते? एक 65 साल की बुढ़ी के सामने खुद को रोक नहीं पाया। अगर भगवान ने मुझे इस सुंदर धरती पर यही करने के लिए भेजा होगा तो। तुम अगर अपने काम में इसका जिक्र करते हो तो शायद टॉयलेट पेपर सबसे ऊपर आ जाएगा। ओह नो, लगता है पुलिस आ गई। ओ जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागो, निकलो, आ जाओ आ जाओ। गाइस, कम ऑन, जल्दी आ जाओ, कर सकती हो तुम। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो मुझे। ये बैग पकड़ो। नहीं, अरे तुम भी ना। ये बैग मेरी जिंदगी है। बैग छोड़ दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैग छोड़ो। तुम पागल हो इसे छोड़ने के लिए कह रहे हो। ठीक है, मर गया, हाथ दो। ठीक है, पकड़ो। हाथ दो, आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे मोच आ गई। ये क्या हो गया? मुझे लगता है मेरे बैग में एक ट्विजर है। अपने हाथ ऊपर कीजिए।
और आगे बढ़िए। अपना हाथ दो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप लोग यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। ऊपर। ये गैर कानूनी है। सॉरी। चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है मैम, इस तरफ। ये आपका घर नहीं है। मेरे पास खुद का है। चलिए आगे बढ़िए। आपको पता है मैं एक लॉयर हूँ। तो आप अपना केस खुद लड़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़िए। मारे गए इसकी तो। सर, बाकी के लोग भाग निकले। पैम कहाँ है? उसे पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब तुमने अपने बैग को बचाया, ना कि अपनी बीवी को? उसका लॉयर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। उसकी जगह खुद को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? तुम तो कोई नौकरी भी नहीं करते हो। मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया। वो बहुत गुस्सा करेगी। हम उसे जेल में नहीं छोड़ सकते। वो कितनी मासूम और दयालु है। और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पैसे के हिसाब से कहा। ठीक है, हम सब स्टेशन चलते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताएंगे और कहेंगे कि उसके बदले हमें डाल दो, तो वो उसे छोड़ देंगे ना? पुलिस वाले एक्सचेंज नहीं करते दोस्त, पर अगर तुम्हें यही करना है तो मैं तैयार हूं इसके लिए। हाँ, क्यों नहीं, धोखेबाज। कम ऑन यार। मेरा नहीं है, मेरी रिंगटोन अलग है। हेलो। हेलो पैम। नहीं, मैं उसका पति बोल रहा हूँ। अरे वही जिसने उसे पिछले 3 हफ्तों से देखा भी नहीं था, क्योंकि तुम 2-3 पेड़ काटने नहीं देना चाहते ना। मैं कौन हूँ तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कौन हो। तुम ऐसे गधे हो जो अपने जूतों के लेस बांधने के लिए भी आधी रात को मेरी बीवी को कॉल करते हो। तुम पैम को फोन क्यों नहीं देते? मैं खुशी खुशी उससे तुम्हारी बात करवाता, लेकिन पुलिस उसे पकड़ के ले गई है, क्योंकि वो अपने परिवार को संभालने के लिए तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पकड़ के थक गई थी। और उसने इसका गुस्सा एक 4 आंखों वाली फिलिस पर निकाल दिया, जिसका अभी अपना एक घर है और अब उसकी 4 आंखें भी नहीं हैं। अरे नहीं। ओके, अब मैं मुसीबत में हूं। ये सही नहीं। गुड। रुको मत, चलते रहो। अरे नहीं। ओह शिट, वो यहाँ आ गए। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जैसे कि तुम्हें हम सब बता देंगे। मत करो डॉगी। हम लोग स्टेशन की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि आपने मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे समझ आ गया कि तुम ही वो बेवकूफ हो जिसने उसकी डील पूरी होने से पहले सरप्राइज पार्टी दी। क्या ये उसने कहा आपसे? हाँ, उसने बताया। टेंशन लोगों को परेशान कर देती है और वो तंग आ जाते हैं। वो, मैं ये सोच रहा था कि उसके बदले में क्यों ना आप मुझे ले चलें जेल में। नहीं, ऐसा नहीं होता है टॉम क्रूज। ट्रेविस, तुम इन इडियट्स के साथ क्या कर रहे हो? पागल हो गई हूँ, ये खुद बहुत बड़ा इडियट तुम है। चुप हो जाओ। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अपनी अच्छी खासी नौकरी गंवाने के अलावा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने बचपन के अपराध को फिर से जीना चाहा? बात को समझो कैस्टियो, हम लोग वहाँ पर बस टॉयलेट पेपर ही फेंक रहे थे। पैम तो यहाँ गलती से आ गई। ये साधारण नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसे साफ करवा दो। इससे तुम पर केस ना करने के लिए उन्हें मना सकते हैं। और तुम गाड़ी में बैठो मेवरिक। सच में? ओह, थैंक यू। हम लोग सब संभाल लेंगे, तुम पैम को लेकर आओ। गुड लक माइक। चलो 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 चलते हैं। लव यू माइक। आपने आज जान बचा ली, शुक्रिया। नहीं, हे कै, मुझे माफ कर दो। हे, मेरी बात तो सुनो कैरन, पता है मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। हाँ, तुमने गलती की है। तुम हमेशा गलती करते हो, खास करके तब जब हम ये सोचने लगते हैं कि पिछले 30 साल के सारे सपने और मुसीबत और साथ रहने की वजह से फाइनली कुछ इनाम मिलने वाला है, तभी तुम गलती कर बैठते हो। एक मिनट रुको, तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम कैसा महसूस करती हो, तो मुझे कैसे... ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। हाँ,
तुम्हें जो भी मौका मिला ना तुम उसे बर्बाद कर देते ये हो। सच नहीं है। पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काफी क्यों नहीं हूँ, जबकि असल सवाल तो ये है कि मैंने ऐसा सोचा भी क्यों कि तुम मेरे लिए सही हो। डग, मुझे वो स्किपी दो। रिचर्ड, ये लोग तुम्हें बाहर निकालने के लिए पैसे नहीं ले रहे थे, तो मैं पैसे देकर अंदर आ गया। तुमने अंदर आने के लिए पैसे दिए? हाँ, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने ड्यूटी पर अफसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी, और मैंने उनसे कहा कि मेरी लॉयर मुझे बचा सकती है। तुम मुझे जेल में भी परेशान किए बिना नहीं रह सकते? तुम्हारे पति ने साफ साबित कर दिया है कि मुझे दायरे समझने में मुश्किल है। रुको, तुमने माइक से बात की? उसने मुझे ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम पर अत्याचार करता हूँ। वो बस मेरी फिक्र करता है। मुझे तो पागल लगा। तुम भी पागल हो जाओगे अगर 2 बच्चों का ख्याल रखना पड़े, कपड़े धोने पड़े, खाना बनाना पड़े, ये सब अकेले करने के बावजूद अपनी बीवी से शिकायत सुननी पड़े एक अच्छी पार्टी रखने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जिद्दी क्लाइंट कुछ पेड़ काटने नहीं देगी, जिससे कि ये डील बहुत आसानी से हो सकती है। मुझे पता है मैंने जीना मुश्किल कर दिया, क्योंकि मैं ये करने देती हूँ। मैं एक डील जंकी हूँ। तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा, तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया। ओह गॉड। मैंने उस बकवास डॉक्टर के सामने जाकर बात की और इस बात पर सहमत हुए कि एक पेड़ काटने के लिए पैसे देगा और एक अतिक्रमण के आरोप को हटा देगा। रुको 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 रुको, तो ये डील वापस होने वाली है? मैं जैसे ही पेपर पर साइन कर दूंगा। जो कि मेरे पास है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे पास होंगे, जो कि तब होगा जब माइक ने उन्हें लोन से उठाया होगा, जब पुलिस मुझे ले गई। मैं सब समझ गई। हे गाइस, तुम लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। होना तो चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हम में से सिर्फ पैम ही वहाँ पकड़ी गई। माइक बहुत ज्यादा परेशान है। हमें उम्मीद है कि अगर हमने सफाई कर दी तो वो केस वापस ले लेगी। तुम लोग ये करते क्यों हो? मेरे पापा एक अच्छे इंसान हैं और उनके पास इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। मुझे लगा तुम सुधर जाओगे। मैं सुधर गया हूँ। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? मेरे पापा ज्यादातर अस्पताल में ही रहते हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन जाने दो। मेरी मॉम को थायराइड की बीमारी है। मेरी मॉम को स्किन कैंसर। मेरी माँ गुजर गई 2 महीने पहले। प्लीज मुझे माफ कर दो इन सब के लिए। जिंदगी खूबसूरत भी है और सुंदर भी। हे, ये सब तुमने किया है। हाँ सर, मैंने किया। मैंने भी। मैंने भी। मैंने भी। हाँ, जो भी है। सॉरी डैड, हम इसे साफ कर देंगे। पता नहीं कब बड़े होगे। आओ साफ करते हैं। वो गलत नहीं है। लगता है अब मुझे ही सफाई शुरू करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बड़े लोग शरारत कर सकें, और वो भी बिना इस डर के कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सच में? हाँ, क्यों नहीं। उसमें बड़ों के लिए कलर बुक होगी, बड़ों के लिए फिजेट स्पिनर। उससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगी? चलो करते हैं। ठीक है,
सुनो 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 सुनो, इसे मुझे करने दो, मैं करता हूं इसे। देखो तुम तो जानती हो ना, रिश्तों के मामले में मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। अभी सिर्फ तुम मेरे साथ हो, और एक चीज जिससे मुझे डर लगता है और मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं, वो ये है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। तो तुम सुधर जाओ फिर, बेवकूफ। कमीना कहीं का। इतना सारा टॉयलेट पेपर है, पता नहीं फिर भी दुनिया में इतनी गंदगी क्यों है। क्यों ना हम इस बकवास से दूर जाकर कहीं वॉफल खाते हैं? हाँ। अरे यार, क्या है ये? ओह बेबी, प्लीज मुझे माफ तुम्हारे कर पास देना। मेरे बैग्स रखे हुए हैं ना? हाँ, मेरे ही पास हैं। ओह, ये माइक है। हमने फोन पर बात की थी। ओह, तो तुम? मेरे असल पति मेरे ऑफिस पति से मिलो। ये रिचर्ड है। तो ठीक है, हमें ये डील पूरी करनी है। ये वाला आखिरी है। तुम्हारी बीवी के बिना ये डील नहीं हो पाती। बिल्कुल सही, पैम बेस्ट है। थोड़ा आराम कर लो पैम, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे कॉल कर देना। पैमेला यंग, आखिर तुमने ये कर दिखाया। तुम हमेशा मुझे चौंका देती हो। तुम हमारे लिए जो भी करती हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा बर्थडे हाईजैक किया। माफ कर दो कि तुमसे पहले गेट से कूद गया। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। माफी मत मांगो, मुझे फाइनली एक घर को टीपी करने का मौका मिला और मैंने ये डील भी साइन कर ली। और साथ ही तुम्हारा बर्थडे आने वाला है जल्द ही, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो, समझे? पैंट अच्छी है तुम्हारी। मैंने क्या बताया था सरप्राइज के बारे में? ओ देखो। हाँ, ये बच्चों के बारे में ही होगा। मुझे बताओ कि इन लोगों ने क्या किया है अभी तक। ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइकल। हे कोच, तुम्हारी पैंट कहाँ है माइकल? वो पैम का बर्थडे है, लंबी कहानी है। मैं तुम्हें कॉल करने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं तुमने सुना कि... मैंने वो सब पहले बता दिया है। अब इससे आगे बढ़ो, अभी डबल हेडर है। हमें उसकी जगह पर कोई नहीं मिल रहा है। पर मेरे पास सिखाने का सर्टिफिकेट नहीं है। शुक्र है कि मुझे तुम्हारी जरूरत फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं है। ओह अच्छा है। हाँ, एक बार मैं बस पैम से बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मंडे को आकर मिलो। यस सर। और हाँ माइक, प्लीज तुम एक पैंट पहन कर आना, मैं प्रिंसिपल को भी बुलाऊंगा। पैंट्स जरूर। ओह अच्छा, हैप्पी बर्थडे पैम। एंजॉय करो। थैंक यू। मैं जाकर बच्चों को स्कूल से ले आऊंगा। तुम जानती हो कि प्रैक्टिस दोपहर में होती है और कुछ वीकेंड्स पर गेम्स। माइक। पैम,
माइकल, पैमेला, मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम्हारी तारीफ करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर ये करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि तुम यही करो। तो क्या अब तुम और मैं साथ में वक्त बिता सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ रोमांटिक। I love you, Pam. I love you too. अब क्या तुम प्लीज मुझे घर ले चलोगे? मेरा बहुत मन है। हाँ मैम। This movie is encoded by Dr. Star. Hey, I'm thinking about investing. Assisted living, I hear that's your thing. Yeah, I mean, well, I'm a transactional attorney. Oh. So, yeah. Could you help me with that? Sure. That'd be really great. Okay. Thank you. Did you know that Napoleon used to be 6'7"? He lost his kneecaps in a ballroom dancing accident when he was a teenager, and they collapsed him down about 3 feet. Wow. So. Did you know that LSD was originally invented to treat alcoholism? When I'm